So far in the previous classes we studied about constitution in general. Generally what constitution means, generally how a good a constitution can be, generally what are the characteristics of a good constitution. Remember my words, this is the concept where most of the students fail to get it. There are two things: one, constitution in general, and number two, Indian constitution. Are you getting my point? Two concept: one, constitution in general, and other is Indian constitution. If I say cake, it means general cake, any cake. But if I say Britannia cake, I mean a particular kind of cake. If I say chips, you can bring any chips. आप किसी को 10 रुपया थमा दो and tell them कि please get some chips. The person will get chips for you. But when you say I need a Lay's and that too of blue color or red color, then the person will bring that particular chips. Same way, first of all we talked about constitution at large, matlab generally what does constitution mean. Now we will be particularly studying about constitution. एग्जाम में दो क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट अदला बदली कर देता है. फीचर्स ऑफ गुड कॉन्स्टिट्यूशन उठा के डाल देता है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठा के डाल देता है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अरे दिस इज तो कॉमन सेंस. I asked about what are the features of good constitution. So write about good constitution, not Indian constitution. Indian constitution is the best constitution. No, there are many other countries who have good constitution. How can you give the example of India only? Right? तो इस चीज को ध्यान रखना. Today we'll be studying about Indian constitution. First of all, you must know when and why the constitution was drafted. Why तो you all know when it was drafted and when it came to force. Please keep these date in mind, because you celebrate 26th of January every year commemorating the constitution. आप लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हो, राइट? यू नो द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. भारत को क्या मिल गया? फ्रीडम मिला. किससे मिला? अंग्रेजों से. वेरी गुड, फाइन, जय हिंद जय हिंद. बट do you even know why do we celebrate Republic Day? I think very few of you know why we celebrate Republic Day. बस इतना पता है कि उस दिन परेड होता है. परेड वहाँ पे मिसाइल लेके क्या बोलते हैं, एक लंबा सा एक रास्ता होता है, उस पर मिसाइल लेके आता है, कोई टैंक लेके आता है, कोई एनसीसी जाता है, ये वो असम का आता है, मेघालय का आता है. So you know that, but you exactly do not know why do we celebrate 26th of January every year. 26th of January we actually celebrate the commemorating the launch of constitution in India. Launch ही बोल रहा हूँ क्योंकि first time आया. I can say came into force because on 26th of January this constitution came into force. ये applicable हो गया था पूरे देश में, ये कानून लागू हो गया था. When? 26th क्या? दिसंबर, नवंबर, क्या बताओ? which year, which month? 26th कौन सा मंथ? आई कैन हियर यू बाय द वे टुडे. यू कैन सी एनी माइक टुडे. आई एम नॉट वेयरिंग एनी माइक. स्टूडेंट कम कहीं खिचड़ी कम. सो बताओ 26th विच मंथ? फेब्रुअरी. व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? 26 मार्च. January, 26 January we celebrate Republic Day. I can do lip reading. अगर सुनाई भी नहीं देता, इफ यू से फेब्रुअरी, आई अंडरस्टैंड फेब्रुअरी बोल रहा है, तो जनवरी लिप रीडिंग से हम समझ लेते हैं. सो यू हैव टू स्पीक अप.
So 26th of January constitution came into force. Some student write 26th November. बुक में देखो लिखा हुआ, यू हैव दिस बुक ना एवरीवन? बुक यू सी थर्ड पैराग्राफ लास्ट टू लाइन. इफ यू डू नॉट हैव नो प्रॉब्लम, ऐसे एक्टिंग कर दो नीचे देखने का. आई विल थिंक दैट यू हैव बुक. 26 November you can see third paragraph 13 number page, the framing of Indian Constitution. The framing of Indian Constitution, third paragraph नीचे लिखा है ना 26 November. Many students write that 26 November 1949 sir. No sir, that is wrong sir, because 26 November 1949 it was adopted, not came into force. What is the difference between adopted and came into force? उद्घाटन करना, समझ में आ रहा है? उद्घाटन. यू मेक अ हाउस, वेरी ब्यूटिफुल हाउस. व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? डू पूजा अर्चना, कुछ भी करो. देन रिबन काटना पड़ता है. रिबन काटो या फिर नारियल फोड़ो. एवरीवन इज सेपरेट सेपरेट रूल्स, सेपरेट सेपरेट रेगुलेशंस फॉलोड बाय डिफरेंट रिलीजन. कोई नारियल फोड़ता है, कोई रिबन काटता है. सम डज दिस, सम डज दैट, राइट. वो उद्घाटन करने का डे है 26 जनवरी 1950, यानी नवंबर दिसंबर का महीना के जनवरी, मतलब 2 months. 26 नवंबर इट वॉज एडॉप्टेड. इसको ले लिया था, एडॉप्ट कर लिया था. ठीक है, इट वॉज एडॉप्टेड बट नॉट केम इन टू फोर्स. अब इसमें देखना पड़ेगा ना कहीं पे कुछ गड़बड़ उड़बड़ है क्या. Final checking, no launching now. First you have to check it completely up from top to bottom. So 26 November 1949, mark my words, 26 November 1949, मतलब 2 years after independence. इंडिपेंडेंस होने के 2 साल बाद. इमेजिन 2 years लगा एक लॉ को बनाने के लिए. 2 complete years, 365 days into 2 for one कॉन्स्टिट्यूशन. पहले से हो रहा था. सॉरी, माय गॉड. यू विल बी लाफिंग. ओके फाइन. व्हेन यू सी द यूट्यूब वीडियो यू विल बी लाफिंग. किसका कॉल आया था? ओके, कम बैक. सो एडॉप्शन मीन्स उसको ले लेना, एंड came into force means, अरे भाई साहब, just a second, just a second, I'm muting my video and audio too. Just a second. আমি ক্লাস করাচ্ছি তো, বারে বারে ফোন করে ক্লাস করাচ্ছি আমি. কি এই নো 2 চামচ, এটা মধ্যে 2 চামচ দিয়ে দিই. all right, I'm back. The baby needs food, so my dad was calling. Okay, so I'm back. So as I said, adoption means what? To adopt it, and came into force means what? When it became applicable. So 26 November 1949 it became it was adopted, but it came into force when? 26th January 1950. That is the day when we celebrate Independence Day, Republic Day in India. Clear? तो दिस वॉज तो वेरी सिंपल. तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कहाँ है? कॉम्प्लिकेशंस यहाँ है. कम टू योर बुक. सिद्धार्थ, यू आर लेट फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली यू हैव टू स्विच ऑफ योर माइक एंड स्विच ऑन योर वीडियो. गलत चीज़ ऑन कर दिया आपने. ऑडियो ऑफ करो, वीडियो ऑन करो. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, द कैबिनेट mission plan of May 16, 1946 cleared the way
for the creation of Constituent Assembly. The election to the Constituent Assembly were held in 1946. The members were elected by elected members of provincial legislative assemblies. The Constituent Assembly was to have 389 members, 296 of them elected from British India and 93 from representative native states. सर कुछ समझ में नहीं आया. सीधी सीधी बात. When you make a law, that is also the biggest law of India, the most important law of India, that is a constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन, हु विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन? कभी सोचा है? हाउ कैन बी मेक, हमने सोच लिया, सब कुछ सोच लिया, बनाएगा कौन? बड़ा बड़ा रेसिपी बोलने से तो नहीं होगा ना, शेफ भी चाहिए, रेसिपी भी चाहिए. यू मेक द बिगेस्ट लॉ ऑफ इंडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इंडिया, बट हु विल मेक इट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट? नो. इज इट पॉसिबल फॉर देम टू मेक अ लॉ? लॉ क्या मजाक है क्या? It is not possible for someone to just हवा में बोल दिया लॉ बना देगा. It is not possible. To make a law, you must have relevant qualification. You must have experience of 15-20 years. Only then you can be the one who can make the law. So for that, the government of India, sorry, not the government of India, a committee was formed. कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक कमिटी चाहिए होता है ना? We go to mandis or masjid you have when you to celebrate Eid you have a committee, to celebrate Ganpati or Durga Puja you have a committee, go to Gurdwara for celebrating the various parabs you have a committee. Everywhere you will find a committee. Committee is what? All the senior most people come together and take a decision, they plan everything. So a committee was formed and this was actually called the Constituent Assembly. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ठीक है, कमिटी बन गया. कमिटी में कौन कौन रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हु विल मेक द लॉ? अगेन प्लीज रिपीट. हु? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मॉर्निंग असेंबली, इवनिंग असेंबली नहीं. और फादर इन हेवन हम लोग जो कहते हैं वो वाला असेंबली नहीं, ये दूसरा वाला असेंबली है. इट इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्लियर? कौन बनाएगा फिर से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके फाइन. One question cleared. Who will make the law? Constituent Assembly. Now the question arises, who will form the Constituent Assembly? इसके अंदर कौन कौन रहेगा? मेरा पापा रहेगा? आपका मम्मी पापा रहेगा? कौन रहेगा? Who will stay there? Your teachers? Prime Minister? President? Who? याद रखना, even remember the date, हाँ? It is 1946. We still have not become independent. 1946 का बात कर रहे हैं हम. तो फाइनली इट वॉज डिसाइडेड देयर विल बी 389 मेंबर्स. कितने मेंबर्स होंगे उस कमिटी के अंदर? कितने मेंबर्स है? कौन कौन मैंने नहीं बताया. कितने होंगे? 389. दुर्गा पूजा कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 25-30. गुरुद्वारा कमेटी में कितने होते हैं? 40. वो भी नहीं होता है. मस्जिद कमेटी में कितना होता है? 50-30 ऐसे ही. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कमेटी में कितना मेंबर? 389 भाई साहब. एंड फ्रॉम वेयर विल यू ब्रिंग दिस 389? 296 विल बी इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश लोग कितना देगा? 296. 389 में से ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं. यू डू नॉट नीड टू take too much of stress because the British are going to give you how many? 296 will be given by British, and India, and 93 from where? Native states. मतलब states वगैरह से कितना आएंगे? 93. Clear? Okay, fine. So everything done. May 1946 को तो वो लोगों ने बता दिया कि there will be a constituent assembly. 1946 मई को उन्होंने डेट्स याद रखना. हाँ, नेवर फॉरगेट द डेट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्राई टू डू नॉट मेमोराइज द डेट. ये दिमाग में छाप लो. कैसे? देखो, इंडिपेंडेंस के पहले 1947 को तब को इंडिपेंडेंस मिला. जस्ट बिफोर दैट 1946. कब? मई 1946 permission was given to make a constituent assembly. Then the question came, what? How many members? कितने members? 389.
Then the question came, कौन कौन से members were 296 from British and 93 from states, Indian native states. Fine, this also solved. Now the first meeting was scheduled on December 1946. मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने बाद. After 7 months of rigorous election and everything, finally 7 months के बाद, ऐसे मंथ करके याद रखना, तब याद रहेगा. इफ यू मेमोराइज दिसंबर एंड मई, तब तो गया. मई का याद रखो, देन जस्ट ऐड हाउ मेनी मंथ्स, 7 months. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. After 7 months, December 1946, a meeting was scheduled. It was boycotted by Muslim leagues. Who that boycott the meeting? They are not going to attend the meeting. Repeat, who said? The Muslim League. नाम सुना इसका? Have you heard about the word, about the name Muslim League? No. You have not heard about Muslim League. My God. Muslim League was the league which was led by Muhammad Ali Jinnah, and prime responsibility of division of India is on them. They are the one who divided the Hindus and Muslims. They are the one who made India into 2 parts. नहीं तो आज के डेट में भी we all would have stayed together as a country united. Though we are united now, but we are separated inside because there was a wrong concept given. Sorry, there was a wrong concept given. What was the concept? The concept was of 2 nation theory. क्या 2 nation theory है वो नेक्स्ट ईयर पढ़ेगा. 2 nation मतलब 2 देश, हिंदूज के लिए अलग देश, मुसलमान के लिए अलग देश. ये कौन दिया था ये थियरी? नन अदर देन मोहम्मद अली जिन्ना. नाम याद रखना. हु? मोहम्मद अली जिन्ना. ही वॉज द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग एंड ही डिड दिस, एंड दिस इज कंटिन्यूइंग टिल डेट. आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा है. अगर ये नहीं होता, इमेजिन हाउ बिग इंडिया वुड हैव बीन. अखंड भारत, अ ह्यूज कंट्री, starting from Assam and finishing in Karachi or Islamabad on the other side. So this Muslim League boycotted. They said, no, we are not going to attend this meeting. No Constituent Assembly meeting, we are not going to attend. So finally that 296 जो member था, only 211 attended the meeting. कितना member आना चाहिए था? 296 from British India, right? 296 must come from British India. But how many came from British India? Only 211. बाकी सब boycott. मतलब they were from Muslim League. They said that we will not attend the meeting. No Constituent Assembly, no Constitution. नहीं चाहिए. Finally, the meeting was held, and who was made the president of Constituent Assembly? Rajendra Prasad. Rajendra Prasad ji, who later on became what? The president also, was actually given the presidentship of Constituent Assembly and later on India also. Rajendra Prasad. For framing the Constituent Assembly appointed 13 committees. छोटा कमिटी बनाया. ये जो असेंबली है बहुत बड़ा सा, ये पूरा तो सारा काम नहीं कर सकता. So they made 13 small committees, just the way in pujas and bihu. If you go for bihu committee, you will see there will be a Sanskritic department, Sanskritic Vibhag. They will take care of all the dance and sing and everything. There will be a guest department. They will take care. They will welcome the guest. There will be a food department. There will be a pandal department. So there is a media department. There are various one after the one. There are various departments, right? So one committee cannot do everything. The Constituent Assembly alone cannot do anything. So therefore they divided the work into 13 small committees. How many? 1, 3, 13. 13 small committees बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में. He was the president of Constituent Assembly, and under his leadership 13 small committees were created in order to get the job done. So there was also a drafting committee. Drafting committee was the committee, this is very important, amongst other committee. ये committee वो committee ऐसा 13 committee था. 13 committee पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है. No need to understand or learn the entire
13 committees. What matters here is one committee, very very important, and that is the drafting committee. Sir, drafting committee क्या है ना सर? ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? ड्राफ्टिंग का मतलब कुछ नहीं है, नाम बड़ा खतरनाक दे दिया है. इट इज नथिंग बट राइटिंग इट इन रफ पेज. जब आप कोई चीज रफ पेज में लिखते हो ना, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग. अंग्रेजी अब बोल नहीं सकता है ना. द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुनने में थोड़ा दम है. इफ आई से द रफ कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गंदा लगता है ना. हाँ, रिमेंबर इन योर चाइल्डहुड यू टू राइट इन रफ कॉपी एंड देन यू राइट इट इन योर फेयर कॉपी, है ना. यू हैव टू टेक अ रफ कॉपी इन स्कूल ऑलवेज, देन यू हैव टू टेक आउट. बाद में तो खत्म हो गया ट्रेंड, बचपन में था. यू हैव टू ब्रिंग अ रफ कॉपी. कॉपी नहीं लाया तो राइट इट इन योर रफ कॉपी. देन मैडम विल से, हैं व्हाई डिड यू डू नॉट ब्रिंग योर कॉपी, टुमारो आई मस्ट सी इट इन योर कॉपी. देन आप नेक्स्ट डे फिर फेयर कॉपी में लिख के लाके मैडम को, मैडम दिस इज राइट. रिमेंबर दैट. सो दैट रफ कॉपी इज एक्चुअली ड्राफ्ट. तो कोई भी चीज बनाने से पहले इसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा ना. व्हेन यू बाय अ चूड़ीदार और अ पैंट और अ शर्ट, व्हाट यू डू, पहले से लगा के देखता है कि नहीं? तो यही तो है ड्राफ्टिंग कमेटी. हाँ ये सही है, ये सही लग रहा है, दिस कपड़ा इज फाइन, दिस विल सूट मी, तब आप देते हो. देन दर्जी विल गिव यू फॉर अ ट्रायल. देखिए तो दीदी पहन के, देखिए तो भैया पहन के, ये वाला शर्ट आपका टाइट हुआ है क्या, चूड़ीदार टाइट हुआ है क्या, कि ढीला है क्या. यू से नहीं भैया, यहाँ से टाइट कर दो, वहाँ से ढीला कर दो, यहाँ से काट दो, वहाँ से जोड़ दो, एंड देन फाइनली इट इज प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू यू. सो दैट ड्राफ्ट, अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ड्राफ्ट, समझ में आ गया. सो देयर वाज अ ड्राफ्टिंग कमिटी. कॉन्स्टिट्यूशन हवा में तो नहीं बन सकता, तो इट हैज टू बी ड्राफ्टेड समवेयर रफ, मोटा मोटी लिख के रखो. सो दैट ड्राफ्टिंग कमिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हम लोग का दर्जी नहीं है, दिस इज एक्चुअली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये कोई हम लोग कपड़ा सीने नहीं दे रहे. यहाँ पे ड्राफ्ट इज ऑल्सो, ड्राफ्ट का भी एक लेवल होता है. दिस ड्राफ्ट इज एक्चुअली फाइनल काइंड ऑफ, मतलब एक लेवल का चीज होता है. ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बंदा इसके अंदर था, none other than B.R. Ambedkar. He was actually the chairman of the drafting committee. ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था कौन? B.R. अंबेडकर. दिमाग में डाल लो, एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. There are many other people, you can find it in your book. Aladi Krishna Swami Iyer, N. Gopala Swami Iyer, K. M. Munshi, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मिटर एंड डी पी खैतान. 7 जन थे, जिसमें से चेयरमैन का नाम सबसे पहले आता है. हु इज देन चेयरमैन? B.R. अंबेडकर. सो फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन January 26, 1949. 49? Yeah, 47. When did the constitution came into force? I can do lip reading. 26 है. डिम्पी इज फाइन. बाकी लोग बोलो. रितु तो डर का मारे कैमी ऑफ कर दिया. यस yes, 26 January 1949, 47, 50, yes, fine, good. 1950, 26 January 1950, the day we celebrate as Republic Day. तो सर एक बात हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा है. क्या सर? कि सर B.R. अंबेडकर, हाउ डिड यू गेट द आइडिया? इसको मिला कहाँ से? अरे सर आप तो अंदर घुसे ही जा रहे हो. फर्स्ट यू सेड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, देन गुड कॉन्स्टिट्यूशन, बैड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फाइनली आई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर बोला कौन बनाएगा? बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कितना आदमी होगा? इतना आदमी होगा. कौन कौन होगा? ठीक है, ये भी बता दिया. फिर इसके अंदर 13 कमेटी होगा, ये भी समझ गया, अलग अलग डिपार्टमेंट. ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ना है सर, ये भी समझ गया. ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया. अभी आप बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बना? दिस इज अ क्वेश्चन यू मस्ट नो. तो B.R. अंबेडकर सर को तो सपना में तो नहीं आया होगा ना कि माता आ गया हो तो ऐसे आशीर्वाद दे रहा होगा उसको कि भैया B.R. अंबेडकर, दिस इज सेक्शन 1, दिस इज आर्टिकल 21, दिस इज आर्टिकल 3. ऐसा होता है क्या? नहीं ना. तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने पढ़ा होगा. ऐसे ही फालतू में उनको थोड़ा ना बना देगा. ही इज वन ऑफ द मोस्ट एडुकेटेड पर्सन इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन इंडिया, B.R. अंबेडकर. B.R. अंबेडकर साहब वॉज गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ रीजन एंड ही न्यू फ्रॉम वेयर ही हैज टू ब्रिंग. देखो, when you, I'm giving an example now in order to understand from where he got it.
चीज़ को ध्यान रखना. रिमेंबर द एग्जाम्पल, यू विल रिमेंबर द पॉइंट्स ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल, when a very close friend of your or a relative or your a person you like very much comes to your house after a long time and you want to make something very tasty for them, what do? You ask your parents to bring this and this, ये सामान लेके आओ, एटू बस्तु लोया नहीं बो मयाजी बनाम बा तो बनाबी ओ मयाजी बनाम की बनाबी, bring this bring that bring this, ये सब कुछ आपने लिस्ट दे दिया. And your father or your mother, your uncle or aunt, whoever goes to the market will know आज मैडम या सर खाना बनाएगा, सो सामान सही होना चाहिए, नहीं तो कहीं कचड़ होगा घर पे. राइट. घी लिख के दिया, घी 250 ग्राम्स. कौन सा वाला घी लाएगा? अनिक. नो अनिक, ये मनोरमा लाइए, नहीं तो अमूल लाइए. लोकल कंपनी हमको नहीं चाहिए. अनिक घी इज गुड. नहीं हमको अनिक पसंद नहीं है ना, वो बोल रहे हैं हमको अमूल ही चाहिए, फिर मनोरमा हो तो और भी अच्छा है. वेरी गुड. और क्या चाहिए? चावल बासमती. लग रहा है बिरयानी बनेगा आज. बासमती चावल ठीक है. नॉट खुला बासमती प्लीज, नो खुला बासमती डैड और मॉम, इट्स नॉट वर्किंग. ब्रिंग दावत बासमती ओनली. क्या बोला? दावत बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस. अरे जैसे काजू, काजू भांगा वाला नहीं, काजू गोटा वाला. टूटा वाला काजू नहीं लाने का, गोटा वाला काजू लाने का. एंड उस गोटा वालों काजू टेंशन में पड़ गया, कहाँ मिलेगा गोटा वाला काजू? इसका दुकान में मिलेगा, ये यहाँ से लेगा. दावत बासमती चावल वहाँ मिलेगा, यहाँ से लेगा. तो चिकन और मटन और वट एवर दे ब्रिंग, और अंडा और पनीर, जिस चीज़ का भी बनाएगा. और पनीर बनाएगा, थिंक पनीर बिरयानी कैसे होता है? तो गोली मार, हमको तो पनीर लाना ही है. पनीर कहाँ से लाएगा? इस दुकान में लगा, नहीं इसका पनीर खट्टा है. उस दुकान से लाएगा, नहीं इसका पनीर गुड़ी हो जाता है, पाउडर बन जाता है. कहाँ से लाएगा? दिमाग लगाया एकदम बेस्ट, ये वाला दुकान, हाँ इस वाला दुकान से पनीर यहीं से लाना. लेकिन हाँ ठीक है. देन यू हैव कलेक्टेड एवरीथिंग, देन यू मेड द बेस्ट आउट ऑफ योर रेसिपी. राइट. व्हाट यू आर डूइंग? यू आर गेटिंग द बेस्ट थिंग. यू कुड हैव गॉन टू वन ग्रोसरी शॉप. राइट. कोई एक ग्रोसरी शॉप में जाने से तो हो गया ना. यू गेट ऑल द प्रोडक्ट्स नाउअडेज. सब कुछ तो कैंड मिलता है, कैंड पनीर, कैंड दिस, कैंड दैट. Then why are we running around just to get the best product? मंगलवार बाजार में गए कभी? Have you gone to मंगलवार बाजार? घुसते ही कोई खरीदता है कुछ? No. कितना लगा है भैया? किमान दी बॉय टू 40 टका. है बेसी वैसे, थोड़ा आगे गया. किमान 35 टका. है बेसी वैसे, थोड़ा आगे गया. 15 टका बेसी कम होल नहीं गड़बड़ আছে পোষা হৈ सके ভালকে सा. राइट. देन यू कम टू नहीं 25 रुपया 22 रुपया मिलेगा. 22 रुपया 22, हाँ 20 टका দিব 22 टका लो जाओ. फाइनली डील सेट. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्चुअली फाइंडिंग योर बेस्ट ऑप्शन अमंग मेनी. You have a lot of options, but you're finding the best option because you need the best product in the given price. What the drafting committee did is they were looking for source. Everything needs a source. सब कुछ का एक सोर्स होना चाहिए. कहाँ से आया ये कॉन्स्टिट्यूशन? आया कहाँ से? वो आसमान से थोड़े ना, मिट्टी और धूमकेतु थोड़े ना है, धार धड़ाम रे गिर गया. यू टेक द कॉन्स्टिट्यूशन, बुक के अंदर डाल दिया, बन गया कॉन्स्टिट्यूशन. धूमकेतु थोड़े ना है, ये नहीं है ना. इसको तो बनाना पड़ता है. कहाँ से बनाएगा? वेयर विल यू मेक इट? हाउ विल यू मेक इट? कहने क्या बनावा? दिमाग. They said that they thought that अरे why are we giving so much of time? इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? Just use a little bit of a brain. What can we do? अमेरिका का तो ब्रिटेन का तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड का ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश लोग का तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना. एट दैट पॉइंट दे आर डूइंग रूल ओवर अस. हमारे ऊपर राज कर रहा था. उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही ना अपने देश में. मेम साहब लोग आता था, साहब लोग आता था, तो दे ऑब्वियसली हैव द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वी ओपन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. जानना पड़ेगा ना कैसे बनता है. तो ऐसे से लिखा हुआ था. अच्छा इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे लिखता है. फिर दे सेड ओके फाइन. और किसी का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? मतलब हाँ है. फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है. फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन भी लाओ, उसमें से देखते हैं क्या क्या अच्छा है. अरे बाप रे. राकेश 1982 यू वेयर, आप तो गायब हो गई थी. ओके यू केम बैक, वेरी गुड. स्विच ऑफ योर ऑडियो प्लीज. नाउ राकेश 1982, आपका नाम मेरे को नहीं पता. प्लीज मैसेज योर नेम ऑल्सो.
सो व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट, या कॉन्स्टिट्यूशन. तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिया एंड वी रेड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी व्हाट डू दे हैव, उनका काम क्या होता है? देयर ओनली वर्क इज टू मेक द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. सो फॉर दैट व्हाट विल दे डू? To make the best constitution, what will they do? They will study what? They'll study the entire constitution. उन constitution को पढ़ा, daily पढ़ते रहा उसको, कोई इसको पढ़ता है, कोई उसको पढ़ता है. They study all the constitution and they are taking the best part of every constitution. They took from British constitution something, they took from Ireland's constitution something, they took some constitution, they took something from France, they took something from United States of America, then something from Canadian constitution. So they took the best of all the constitutions to make the Indian constitution. हर जगह से बेस्ट एंड बेस्ट, नो इश्यूज. अगर करंट गया है, अंधेरा में रहो, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज. आई डोंट नीड लाइट, आई डोंट नीड टू सी योर फेस. इतना क्लियर बस है, पता लगना चाहिए. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डिड दे डू? दे टुक द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन. ये पहला है. व्हाट डिड दे डू? नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज. नंबर 1 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, पहला सोर्स. क्लियर? व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? कोई पूछे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, जैसे न्यूज देता ना, यू सी वेरियस न्यूज ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर, ऑन व्हाट्सएप. कभी कभी लगता है कि ये क्या, ये सही है कि फेक है. देन यू आस्क द पर्सन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन? पूछता है ना, व्हाट इज द सोर्स, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द इंफॉर्मेशन? दैट मीन्स एवरीथिंग नीड्स अ सोर्स. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक सोर्स है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैड अ सोर्स. व्हाट इज द सोर्स? नंबर 1 इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज. रेडीमेड चीज तो पहले लाओ, राइट? रेडीमेड चीज तो पहले लाओ, देन बाद में सोचेगा. ऐसे और भी सोर्सेस है. आई विल नॉट कंटिन्यू द सोर्सेस टुडे बिकॉज दिस माइट मेक द क्लास अ लिटिल बिट बोरिंग. इट्स ऑलरेडी हाफ एन आवर. आई विल जस्ट गिव यू द फर्स्ट पार्ट. क्या बोला पहला? क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज वॉज वन सोर्स. इसी तरह और भी कई सारे सोर्सेस हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट, ओए भाई ये क्या है, इन द नेक्स्ट, राकेश 1982, आपका ऑडियो म्यूट करो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज. दिस इज वन सोर्स. सो ऐसा देयर आर मेनी अदर सोर्सेस, ऐसा बहुत सारा सोर्स है. तो विल स्टडी दिस, द सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन द नेक्स्ट क्लास. टुडे वी अंडरस्टूड व्हाट? द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. These two things we learned. In the next class we'll study about the sources of constitution. Constitution आया कहाँ से, बी आर अम्बेडकर सर के माथा में आया कहाँ से, ये लोग बनाया कैसे, how did they make the constitution? So I'll give you a photo again in the class, in the group, along with the YouTube link, maybe after half an hour or so. So please go through the points that I gave you. और next class में आपको क्या पढ़ना है उसके लिए भी मैं points दे दूंगा. So watch the video and then go through that photo also. Fine? Okay, we'll meet tomorrow. Bye bye.